Okay, hello everyone. Am I audible and is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, sorry for the delay. There was a little technical error from our side. Okay, foremost, mock test practice किए अब तक के chapters के? ये है मैम, लेकिन दो मॉड्यूल ए का छूट गया, दो लास्ट का दो। अच्छा, कल की chapters का उसी कर लिया. ठीक है, कल कोई की ये किए हैं, मतलब प्रॉफिट और दो आर ओ ई का किए हैं, तक का किए हैं। अच्छा उसके तो बाद दो ठो बाकी। टॉपिक्स क्लियर हैं सारे, कोई डाउट तो नहीं है? Ma'am, I'm having some doubts. Yes, नहीं yes. मैडम। Yes, you can ask me. Ma'am, I searched for the term delinquency. Delinquency means the Google said lawless. Okay. Uh, uh, we come across one Your question in that voice, higher your voice is delinquencies. breaking. Your voice is breaking. Could you repeat? Okay, shall I type? No, 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 no. Madam, we came across the term Hmm. delinquency. Mm-hmm. Okay, now I am audible, madam. Yes, yes, yes. Repeat the Madam, question. we came across a term delinquency. We came across a term delinquency. Hmm. Delinquency. You want to know the In the meaning of higher dwell? delinquencies in unsecured and uh, uh, madam, what is lawless in unsecured and credit card? What Okay. what could Here, be done? right. Here, what delinquency means is, let's say you took a loan from bank or you took a credit card. So what needs Okay. credit card is that you don't need to make immediate payment. आप क्या करते हो? You make a payment and then at the end of the month the whole collected sum then you need to pay it with some to certain interest as well. That happens in credit card. ठीक. So if you pay the amount, that would be lawful. You are Yes. lawfully required to pay the amount. If you don't, if If- you don't pay Yes. the amount, Okay. or in similarly in case of a loan, if you don't pay the EMI, let's say, or you don't pay the interest as per, so that would, both these situations would be recorded as delinquent. These are delinquencies Okay, ma'am. in credit card or loan business. So the Okay, ma'am. law Then law hmm, what is partial outsourcing? Partial means new generation private banks follow outsourcing plus in-house sourcing. yes, So partial. whether it means partial outsourcing. So partial outsourcing is followed by new generation private banks. Yes. The meaning Is that of partial is some, for some products in-house production is done, and for other products or services outsourcing is done. That is partial, not okay? So completely. new. Okay, so partial outsourcing is followed by new generation private banks. Yes, Is that right? yes, And yes. then what end-to-end outsourcing that is followed by uh, Foreign any banks. bank Complete, end-to-end. yes, end-to-end outsourcing, front-end, back-end operations, these are followed by the foreign banks. Then one more is left, ma'am. Predominant outsourcing. I thought foreign banks are following predominant outsourcing. Now, okay, here the terms are a bit mixed. Predominant, when we are talking about, that is more of the horizontal or vertical models. Okay, Predominantly, ma'am. right, it means maximum, most of the time horizontal, or most of the time vertical modeling. Like we talked about this, right? The product centered or customer information, whether the banks are using more customer information, centralized customer information or not. So that was modeling on the basis of vertical or horizontal models that are adopted by banks. Oh, Outsourcing means whether you are using your own मैम resources. ग्रुप Yes. okay. Are you saying something? ज्वाइनिंग के लिए ग्रुप में मांग रही मैम, तो ग्रुप वीडियो लाइव क्लासेस में आने के लिए लिंक मांग रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में।
अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है इसका। लिंक अगर होगा सर शेयर कर देंगे, तनवीर सर शेयर कर देंगे। आई डोंट थिंक दिस इज ये क्लास केवल आप जिन लोगों ने कोर्स के लिए इनरोल किया है उनका है। तो अभी अभी इज इट क्लियर रूबी? ओ, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? मेरी वॉइस ऑडिबल है? Recording in progress. Is the screen visible? Am I audible or is there any technical issue? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Clear, ma'am. ओके, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जस्ट अ सेकेंड। यस, स्क्रीन अभी स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैडम। ओके ओके, ठीक है। सो रूबी, आप जो पूछ रहे थे वो क्वेश्चंस अभी क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, और But yesterday I didn't practice any questions, ma'am, because I was suffering from fever. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यू अभी अभी आर यू फीलिंग फाइन? I refreshed the notes taken from your class, ma'am. That's it. I'm with that. ओके I ओके, didn't put any practice. no issue, no issue. You can practice the mock test on the weekend, Sunday, if you get Yes, time. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अभी आगे बढ़े? यस मैम। चलो ठीक है। आज जो हम लोग चैप्टर्स कवर करने वाले हैं दैट इज कस्टमर से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें पढ़नी कि कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, सो यू आर वर्किंग इन द बैंक्स इटसेल्फ, सो यू नो व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर। कस्टमर्स की प्रोडक्ट्स और सर्विस से रिलेटेड बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि अगर वो बैंक में जा रहे हैं तो उनकी क्वेरी को तुरंत आंसर किया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बार बैंक्स विजिट करने पड़ रहे हैं। या फिर इसके अलावा कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ कस्टमर की डिमांड्स रहेंगी। सो बेसिकली ये सब चीज़ें वो जनरल है, हमको ऑलरेडी पता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिस्फैक्शन, सो इफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग मेट, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से अगर वो हम इक्वल उसका प्रोवाइड कर रहे हैं, सो एक्सपेक्टेशंस आर, वी कैन राइट इक्वल टू द सप्लाई, so we'll say the customer is satisfied, right? We'll say the customer is satisfied. Two other conditions are created sometimes. Let's say जब customer के expectations हम fulfill नहीं कर पा रहे हैं, so उससे क्या होगा? Dissatisfaction होगा। If let's say the supply is less, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, हम लोग नहीं मीट कर पा रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ अलग डिमांड है, हम कुछ और सप्लाई कर दे रहे हैं, सो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कस्टमर हैप्पी कब रहेगा? जब हम लोग उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटाइजेशन, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज ऑन द मोबाइल ऐप, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, उसको ब्रांच बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अंदर पे। ठीक है, बेसिकली यही हमको कवर करना है इस चैप्टर में कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड रहता है। सो लाइक आई सेड, हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। यू विल बी सीइंग अ बिट अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट रिटेल प्रोडक्ट्स और रिटेल सर्विसेज, अदर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक साइड हम लोग जो रिटेल प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते हैं दैट इज आवर लायबिलिटी साइड, एंड द अदर साइड इज द असेट। लायबिलिटी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट्स, एंड असेट्स आर द लोन साइड। असेट वो होते हैं जहाँ पे बैंक अर्न करते हैं, एंड लायबिलिटी वो होते हैं जहाँ पे कस्टमर अर्न करते हैं या फिर बैंक क्या करते हैं, दे Recording in progress.
अगर कभी भी बीच में मेरी वॉइस लॉस्ट हो रही है या फिर कुछ डिस्कनेक्शन हो रहा है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अभी डिस्कनेक्शन हो गया है। अब अभी इज इट फाइन? अभी ठीक है? Yes, ma'am. अभी स्क्रीन स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, वेट अ सेकंड। स्क्रीन नाउ? यस मैम, नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें जो कि डिस्कस करने वाले हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन्स। जब कोई कस्टमर बैंक के पास जाता है, उसको रिटेल लोन चाहिए हो, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि बैंक्स फिल करवाएंगे। उसके बाद बैंक्स क्या करेंगे? कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो वेरिफिकेशन करेंगे। तो यही सारे जो जनरल स्टेप्स हम लोग हर बार देखते हैं, वही सारे जनरल स्टेप्स है जो कि बैंक्स एक्चुअली फॉलो भी करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला, कस्टमर को पता चलना चाहिए है कि ये लोन प्रोडक्ट है। सो कैसे पता चल सकता है? आइदर द एप्लीकेंट कुड अप्रोच द बैंक। किसी कस्टमर को एक होम लोन की ज़रूरत है, तो वो आएगा बैंक के पास और वो बैंक से क्वेरी करेगा कि ऐसा ऐसा मुझे एक हाउस परचेज करना है या मुझे हाउस कंस्ट्रक्शन करना है। उस हिसाब से वो बैंक के पास अपनी क्वेरी लेकर आएगा। या फिर जो सेलिंग टीम है या फिर एनी पर्सन दैट इज रिलेटेड टू द बैंक, वो अप्रोच कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से। ये क्या आता है? यहाँ पे कॉल सेंटर्स का फंक्शन आ सकता है। जैसे या फिर हम लोग क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं तो मोस्टली कॉल सेंटर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। सो दीज आर अ फ्यू ways in which an applicant could reach the bank or the bank could approach the applicant regarding a loan or any product। ठीक है। फिर पहला स्टेप क्या होता है? जब हम लोग ने लेट्स से इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल ने लोन की बात की और हम लोगों ने उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप is the verification of the KYC documents, know your customer documents, जो recent सबसे ज़्यादा RBI की guidelines रही होंगी उसके अकॉर्डिंग KYC या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें बैंक देखता है। क्या क्या बहुत सारे आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ, आपका सैलरी, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केवाईसी के अंदर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई नॉर्म्स बैंक्स चेक करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं वेदर और नॉट द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इज करेक्ट। ठीक है। फोन नंबर वेरीफाई करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। देन स्कोरिंग मॉडल, लाइक वी सेड, क्रेडिट स्कोरिंग बैंक्स यूज करते हैं टू सी योर पास्ट हिस्ट्री, कि आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिया था, सो हैव यू पेड द EMIs ऑन टाइम, द इंटरेस्ट ऑन टाइम, ये सारी चीज़ें बैंक्स देखते हैं। तो ये जनरल स्टेप्स हैं जो कि रिटेल लोन्स का एक एग्जांपल बस लिया गया है कि अब किसी प्रोडक्ट को लेके प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है। फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि हमको वेरीफाई करनी होती है केवाईसी के अंदर? सो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरिफिकेशन करना होता है, वेरिफिकेशन ऑफ पैन फ्रॉम द आईटी वेबसाइट, वेदर और नॉट द पैन नंबर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इज करेक्ट। उसके अलावा इनकम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा सैलरी स्लिप्स। Recording in progress. राइट, हाउस विजिट किया जाता है रेसिडेंशियल एड्रेस को देखने के लिए, टैक्स स्लिप्स वगैरह, बहुत सारे केवाईसी वेरिफिकेशन होता है जो कि बैंक्स करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, तो एक बार आप ये लिस्ट पूरी देख लेना। इसके लिए अलग से भी चैप्टर है जिसमें डिटेल में आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक बस दिया गया, एक एग्जाम्पल की तरह आप देख रहे हो। सो प्रॉपर्टी अगर सिक्योरिटी या कोलेट्रल के लिए दिया गया है तो उसका वैल्यूएशन करते हैं। सो ऑफिसर्स क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे वेदर और नॉट द वैल्यूएशन दैट इज प्रोवाइडेड और द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी दी है कस्टमर ने एज सिक्योरिटी, वो एक्चुअली उस वैल्यू की है मार्केट में या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन बैंक ऑफिसर्स वो करते हैं। ठीक है, सो यस, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होगा, बेसिक सी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है ये, जैसे कि क्वांटम ऑफ लोन, कितना अमाउंट है लोन का जो कि बैंक्स ऑफर करेंगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। 12 times द मंथली इनकम इन केस ऑफ लोन्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, इन केस ऑफ व्हीकल्स 4 times, 48 to 60 times इन द पर्पज ऑफ हाउसिंग, बिकॉज हाउस कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा अमाउंट लगता है। अब दिस वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कुछ नॉर्म्स दे देगा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर देगा, बट उसके अंदर बैंक्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ हो सकता है एप्लीकेंट्स जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे बैंक्स, या फिर अगर किसी का क्रेडिट स्कोर जो है इट इज़ लेस देन 600 लेट्स से, तो उनको क्या करेंगे, उनको कम लोन प्रोवाइड करेंगे। सो ये बैंक के पास ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी नहीं बट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। विल नॉट यूज द वर्ड ऑटोनॉमी, विल यूज द वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बैंक्स अपने डिस्क्रिप्शन पे देख के कि कस्टमर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, नीड के हिसाब से भी, लेट्स से एजुकेशन लोन की अगर बात कर रहे हैं तो नीड के हिसाब से भी बैंक क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि अमाउंट कितना होगा। इसके साथ साथ में रीपेमेंट पीरियड 3 to 30 years डिपेंडिंग अपॉन दी पर्पस, तो ये मिनिमम मैक्सिमम लिमिट हमको पता है। उसके अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जैसे एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, तो 3 to 5 years है। फिर हाउसिंग लोन 5 to 30 years, ये वैरी करता है बिकॉज हाउसिंग लोन अगेन अमाउंट ज़्यादा है तो रीपे करने में टाइम लगेगा। मोराटोरियम पीरियड जो होता है, अगर मोराटोरियम पीरियड की बात करते हैं, दिस इज एक तरीके से एक रिलैक्सेशन पीरियड प्रोवाइड किया जाता है कि इस टाइम पे बैंक नहीं बोलेगा कस्टमर को कि आप रीपे करो, इतना एक फ्री टाइम दिया जाता है। हॉलीडे पीरियड भी या फिर इसको बोला जा सकता है। तो हॉलीडे पीरियड क्या रखना है, ये सारी चीज़ें बैंक क्या करेगा, दे विल एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस टू द कस्टमर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे, और जब वो अग्री करेगा तभी वो आगे प्रोसेसिंग करेंगे। कस्टमर से कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक छुपा के नहीं रखेगा। ठीक है, so now here's a list that is provided. These are the different customer segments that are included in retail banking. ठीक है, so income levels, अगर 2 to 10 lakhs में income level है तो उसको mass affluent कहते हैं। then 10 to 50 में है तो mass affluent कहते हैं। 50 to 400 super affluent कहते हैं। Again, not very important from exam point of view, but general things that you should know as a banker. ठीक है, सो अब यहाँ पे ये वाले जो रिटेल बैंकिंग में है, दिस टर्म हेयर, द फर्स्ट 3 segments, नेमली मास मार्केट, मास एफ्लुएंट एंड सुपर एफ्लुएंट, दीज 3, ये बेसिकली रिटेल बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कस्टमर्स दैट मोस्टली अप्रोच द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। बाकी सारे तो जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं तो वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, बट ये जो कस्टमर सेगमेंट है, दीज 3, these are important for retail banking. ठीक है, अगेन आई रिपीट कि इवन इफ कुछ चीज़ें एग्जाम्स में नहीं पूछते फिर भी बेसिक है, आपको पता होगा, सो आपका जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो दिस इज राइट हेयर। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मैस्लोज थ्योरी। अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक जनरल थ्योरी दी थी कि इंडिविजुअल किस तरीके से अपने लाइफ में प्रोसीड करता है, इंडिविजुअल किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं लाइफ की, कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करता है। उस थ्योरी को हम लोगों ने बैंकिंग में यूज़ किया है टू एक्सप्लेन हाउ द कस्टमर विल प्रोसीड फ्रॉम द बेसिक लेवल नीड्स टू द मोर हायर और कॉम्प्लेक्स लेवल नीड्स। तो अगर हम लोग जनरल टर्म्स में बात करें तो आप खुद सोचो, आप जब
नया नया जॉब स्टार्ट करते हो या आपके पास इनकम का एक सोर्स होता है, सो फर्स्ट व्हाट यू नीड द बेसिक नीड्स, दीज आर द फिजियोलॉजिकल। आपको क्या चाहिए होगा? यू नीड फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप। ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये नीड्स इंडिविजुअल की फुलफिल नहीं होंगी तो वो आगे कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। जो गरीब इंसान होगा उसको क्या, उसको यही चाहिए होगा ना कि उसको खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, रहने को मिल जाए। सो दीज आर द बेसिक लेवल नीड्स। एक बार आपने जब ये सारी नीड्स क्या कर ली, आपने फुलफिल कर ली, तब आप क्या करोगे? यू विल नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सेकेंड लेवल आता है, ये होती है सेफ्टी नीड्स। इसमें आपको क्या चाहिए? यू नीड हेल्थ, यू नीड एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी नीड्स होती हैं। जब आपकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तब आप ऊपर जाओगे लव एंड बिलोंगिंग। आप खुद देखो, आपकी खुद लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं, आप एक एक नीड को पूरा करते जाते हो। इसीलिए मैस्लोज हायरार्की या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे जो कि फिजियोलॉजिकल है, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर हमको फैमिली, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट, दैट वी बिलोंग समवेयर, वी हैव पीपल वी कैन रिलाई ऑन, वी कैन ट्रस्ट, वो सारी चीजें आ जाती हैं लव एंड बिलोंगिंग में। ठीक है, जब हमारे पास ये सब आ जाएगा देन वील वर्क ऑन आवर सेल्फ एस्टीम। नाउ सेल्फ एस्टीम इज आवर सेल्फ वर्थ। हम खुद को क्या पोजीशन में रखते हैं, हमारी खुद की वर्थ कितनी है, हम खुद को कितना लायक मानते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए? वी नीड कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल। एस्टीम हमारी कैसे बढ़ेगी, वर्थ कैसे बढ़ेगी? लेट्स से मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ जो कि मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिर सेफ्टी नीड्स में फुलफिल हो गया। सेल्फ एस्टीम तब होगा अगर मुझे प्रमोशन मिलता है, अगर मुझे प्रमोशन मिलता है, या फिर मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है, या फिर बोनस अगर दिया जा रहा है तो मुझे सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है, या जो मेरा एम्प्लॉयर है, बॉस है, वो सबके सामने मुझे प्रेज करता है। ठीक है, तो वो हो जाता है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? तो वो हो जाता है सेल्फ एस्टीम। एंड देन फाइनली जब ये सारी हम लोगों की नीड्स पूरी हो जाती हैं, वी मूव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज द फुल पोटेंशियल। जब इंडिविजुअल अपनी कंप्लीट पोटेंशियल को पा लेता है वो हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। लेट्स से आप बैंक में वर्क कर रहे हो बट आपका कुछ पैशन था जो आप पहले नहीं फुलफिल कर पाए। लेट्स से योर पैशन वाज टू ओपन अ स्मॉल बुक स्टोर और अ कैफे और योर ओन बिजनेस। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आएगा? जब आप अपना फुल पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल कहाँ है? मेरा पोटेंशियल लेट्स से म्यूजिक में है। ठीक है, तो अगर मैं अपने म्यूजिक को परस्यू कर पा रही हूँ, सो दैट विल कम अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, एंड दीज आर मोर हायर नीड्स। सो फर्स्ट थ्री हम लोग की बेसिक नीड्स हो जाती हैं, एंड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी हायर नीड्स हो जाती हैं। ये समझ में आ रहा है? दीज 5 स्टेजेस, दिस पिरामिड इज क्लियर? यस? यस मैम। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ आप पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में भी पूछना, ठीक है? यस, ओके, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि अब्राहम मास्लो ने क्या कहा था इस थ्योरी के बारे में। सो इन हिज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन he had stated that people are motivated to achieve certain needs, and when one need is fulfilled a person seeks to fulfill the next one. जब एक नीड पूरी हो जाती है, जब मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तभी मैं नेक्स्ट नीड पे जाऊंगी। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे नीड को पूरा होने से कोई रोकता है, एनीथिंग, कोई कंस्ट्रेंट की तरह वर्क करता है, कोई लेट्स से आपका कोई कलीग है, वो आपको प्रमोशन मिलने से रोक रहा है, या फिर आपका बॉस है वो आपको प्रमोशन मिलने से रोक रहा है या बोनस मिलने से रोक रहा है, तो आपको क्या होगा? आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा, है ना? यू विल फील एंग्री। सो वो बोलते हैं कि वन नीड इज फुलफिल्ड तभी हम नेक्स्ट नीड पे जाते हैं। सो 5 नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड मूव अप द वैल्यू चेन ड्यूरिंग द लाइफ स्टेज प्रोग्रेशन। ठीक है,
इसी को, अब तो ये जनरल थ्योरी हो गई जो अब्राहम मैस्लो ने साइकोलॉजी में दी थी फॉर मोटिवेशन। अब इसको बैंकिंग में कैसे अप्लाई किया गया? हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक नीड हमारी क्या होगी? हम लोग लेट्स से एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, हमने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड लेवल, अगर इस पिरामिड में वापस जाओ तो सेकेंड लेवल क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें किससे मिल सकती है? लेट्स से आई एम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, तो क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट। ये मेरा सेफ्टी का काम है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो फिर सेफ्टी के लिए मेरे लिए काम करेगा। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए सेफ्टी के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गए सेफ्टी नीड्स। उसके बाद हमारी आ जाते हैं सोशल नीड्स, ठीक है। अब सोशल नीड्स में मोर और लेस जो हमारे पर्सनल लोन्स होते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ प्लेस फॉर माई सेल्फ इन द सोसाइटी। मैं चाहती हूँ कि लोग मतलब देखें कि हाँ सोशल नीड्स है, तो हमको क्या चाहिए होगा? लेट्स से होम लोन, है ना, होम लोन वेयर माई फैमिली कैन स्टे, या फिर मेरी फैमिली में ही किसी के लिए हो सकता है मुझे एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल लोन्स। वो सारी किस में आ जाएंगी? ये मेरी आ जाएंगी थर्ड या फिर सोशल नीड्स में। फिर आ जाता है एस्टीम। अब मैंने होम लोन ले रखा है, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स डिपॉजिट है। अब मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? और अगर मैं कुछ एडिशनल सर्विसेज लूँगी, लेट्स से सेकेंड हाउसिंग, मेरे पास ऑलरेडी एक हाउस है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं एक सेकेंड हाउस भी ले सकती हूँ, सो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो वो हो जाएगा किसके अंदर आ जाएगा? मेरे एस्टीम नीड्स के ऊपर। उसके अलावा लेट्स से इंश्योरेंस प्रोडक्ट किस में आ जाता है? हम लोग के सेफ्टी में इंश्योरेंस प्रोडक्ट आ जाता है। अगर मैं टर्म इंश्योरेंस ले रही हूँ, इफ़ आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस, तो वो किस में आ जाएगा? अगेन एस्टीम में। और फाइनली होता है हम लोग का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ इसमें जब कैटेगराइजेशन होता है तो इंडिविजुअल बाकी सारी नीड्स पूरी कर चुका है एंड लेट्स से अब रिटायर हो रहा है। तो जब रिटायर हो रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए होंगे, या फिर पेंशनर्स लोन चाहिए होंगे, ठीक है, सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स। तो ये सब किस में आ जाएगा? आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो किस तरीके से इस थ्योरी को हमने बैंकिंग में यूज किया है, आप वही देखोगे। सबसे सिंपल प्रोडक्ट सबसे नीचे आएगा हायरार्की के, फिर उसके बाद थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके स्टेजेस इन लाइफ चेंज होंगे वैसे ही आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर हायर लेवल पे जाएंगे आपके बैंक डिमांड्स, ठीक है। क्लियर? हायरार्की ऑफ नीड्स बाय अब्राहम मास्लो। ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि इंडिविजुअल वन नीड फुलफिल करता है, फिर वो नेक्स्ट पे जाता है। अगर एक नीड नहीं फुलफिल होती है तो वो डिससेटिस्फाइड रहता है, वो हमेशा स्ट्राइव करता है कि नहीं उसकी नीड्स फुलफिल हों, वो कोशिश करता रहता है, वो रुकता नहीं है। एंड दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। सो टेल मी, क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? यस नो कुछ तो बोलिए। क्या वो क्लियर नहीं हुआ है क्या? यस यस क्लियर, ओके, यस ठीक है। मेनली इस चैप्टर से यही टॉपिक था जो कि इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं इसमें क्या है। अब सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड कस्टमर्स की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? पहले एक्सपेक्टेशन होता है टैंजिबल, टैंजिबिलिटी होता है फिजिकल, एनीथिंग दैट यू कैन टच, anything that is physical, that is tangibles. So tangible से related जो आप देख रहे हो, तो सबसे पहले are the appearance, what are the appearance of physical facilities, क्या वो attractive है, equipment, personal communication material, क्या उसको use करना easy है, whether the let's say income statements, these are easy to understand. तो ये सब क्या हो जाता है? ये फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, टैंजिबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा क्या? रिलायबिलिटी, वेदर और नॉट द प्रोडक्ट्स आर एबल टू परफॉर्म द सर्विस,
अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेट्स से एटीएम सर्विस की, ठीक है, एटीएम, तो क्या एक्चुअली मुझे पता है अगर मैं एटीएम जाऊंगी तो मुझे कैश मिलने ही वाला है? क्या मैं रिलाई कर सकती हूँ? कैन आई डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट? वो रिलायबिलिटी के अंदर आ जाता है। रिस्पॉन्सिवनेस, क्या बैंक्स कस्टमर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं, नहीं कल आइएगा, अगले मंथ आइएगा, अगले मंथ आइएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें। अश्योरेंस, जो ऑफिसर्स हैं वो कस्टमर्स को अश्योरेंस दे पा रहे हैं कि नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपको लोन मिल जाएगा आप अगर होम लोन लेना चाह रहे हो, या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। तो ये सारा अश्योरेंस बैंक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे कस्टमर्स को। एम्पैथी, नाउ एम्पैथी इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से आप समझ सकते हो, understanding if whether or not the bank officers they are understanding enough, क्या उनको कस्टमर की सिचुएशन समझ आ रही है या फिर नहीं समझ आ रही है, वो उनसे सेंसिटिव तरीके से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो लोन की लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा ना हो, तो इस सिचुएशन में एकदम रिजिड होके नहीं डील करेगा बैंक। बैंक क्या करेगा, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा, सिंपैथी के साथ, एम्पैथी के साथ डील करेगा, ठीक है, सेंसिटिव तरीके से। सो दीज आर द बेसिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर्स को समझना, कस्टमर चाहेगा कि बैंक ऑफिसर्स उसकी बात सुने, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे रिपीट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। बाकी जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में इट्स मोस्टली थ्योरेटिकल, कि होम लोन से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी या डिपॉजिट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, जस्ट गो थ्रू देम वंस, अपने बुक से अपने नोट से एक बार गो थ्रू कीजिएगा। कोई टर्म अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, वरना आई थिंक इट्स प्रिटी ईजी। मेनली इस चैप्टर से यही मैस्लोज हायरार्की समझना ज़रूरी था क्योंकि दिस इज समवॉट न्यू, एक नया सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। Next chapter that we have for today is product development process. Now again, इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दी गई हैं कि लेट्स से रिटेल प्रोडक्ट क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बट वो हम सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड अनदर टॉपिक जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो बाकी चीज़ें एक बार रीड करना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब पहले समझने की कोशिश करो। कोई भी प्रोडक्ट होता है, एनी प्रोडक्ट, बैंक को छोड़ दो, आप एनी प्रोडक्ट को उठाओ, कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ लाइफ स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है। देर आर सम स्टेजेस, just like individuals, we grow from being a baby to a child to an adolescent, adult, then we grow old and then we die, है ना, we finally die, we take birth and we die। उसके बीच में कई सारे स्टेजेस आते हैं। सिमिलरली हर प्रोडक्ट और सर्विस के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले when the product is even before introduction of the product, क्या होता है, प्रोडक्ट का क्रिएशन किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का क्रिएशन किया जाएगा, क्रिएशन करने के बाद उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। जब वो इंट्रोड्यूस हो गया तो उसकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की जाएगी, प्रोडक्ट ग्रो करेगा, सेल आउट करेगा। फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट डेथ हो जाएगा या फिर मार्केट से बाहर चला जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर फ़ोन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ोन्स, तो सबसे पहले क्या था, वो हैंडसेट वाले जो फ़ोन्स आते थे वो चला करते थे जिसमें वो वायर होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेलीफोन, अब लोगों को नई टेक्नोलॉजी आई, उनको लगा कि नहीं हमको अपना फ़ोन लेकर इधर उधर जाना है, तो छोटे छोटे कीपैड वाले फ़ोन आए, ठीक है, जिसमें बटन्स होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग को लगा कि नहीं कीपैड क्यों, हमको और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टच फ़ोन्स आए। अब अगर आप देखोगे, आपसे कोई बोले कि नहीं तुम अपना टच फ़ोन एंड्रॉयड छोड़ दो और तुम कीपैड की तरफ जाओ, तो आप नहीं जाओगे, है ना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डिमांड्स हैव चेंज्ड, the expectations have changed, and all your needs that are being fulfilled by your Android internet, वो आपका अब वो छोटे वाले
कीपैड वाले फ़ोन से फुलफिल नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन है कि नहीं आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको वो छोटा वाला फ़ोन ही करना, आप नहीं करोगे, आप अपना एंड्रॉयड नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो वो छोटा वाला फ़ोन मार्केट में आया, उसने दूसरे फ़ोन की जगह ली थी, काफ़ी ग्रो किया, लोगों ने उसको पसंद किया क्योंकि आप उसको लेकर कहीं भी जा सकते हो। फिर धीरे धीरे जब बाकी और प्रोडक्ट्स आ गए, एंड्रॉयड आ गया, टच फ़ोन आ गया, टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट से बाहर चला गया। आज के टाइम पे डेथ स्टेज में ऑलमोस्ट, बहुत कम ही नोकिया वगैरह या आई थिंक सैमसंग, कोई छोटे छोटे से फ़ोन वो लोग करते होंगे, ठीक है। और टेलीफोन तो अब कोई नहीं ही यूज़ करता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ये स्टेजेस क्या कर रहे थे कि पहले प्रोडक्ट बना, मार्केट में आया, ग्रो किया, बहुत पॉपुलर हुआ, फिर फाइनली कंपटीशन मिला, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए एंड देन मार्केट के बाहर चला गया। सिमिलरली बैंक प्रोडक्ट्स भी इन्हीं सब स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज is the introduction stage. Introduction stage is when the product is introduced. कोई नया प्रोडक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में. When a product is introduced, the अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, या आपको याद रखना है कि किस स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उस स्टेज में Recording in progress. कहाँ तक आया था, हम लोग स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे, वो आप लोग को सुनाई दिया था? यस मैम, ठीक है. थोड़ा सा नहीं चला। अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब देखो, अगर कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेस वूमन है, उसने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो पहले तो वो अपना खुद का कैपिटल यूज़ करेगी, है ना, वो अपना खुद का पैसा यूज़ करेगा. तो वॉल्यूम, एकदम से सेल्स नहीं बढ़ जाएगी किसी प्रोडक्ट की, तो सेल्स वॉल्यूम भी कम रहेंगे एंड रेवेन्यू विल ऑल्सो बी लो. बेसिकली वी कैन ऑल्सो से रेवेन्यू नेगेटिव होता है. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सर्विसिंग, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट अगर हम बात करें, जितना हम रिसीव कर रहे हैं, तो सेल्स कम है, रेवेन्यू कम है. फर्स्ट स्टेज में हम लोग खुद का कैपिटल या पास्ट सेविंग्स यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में या और ज़्यादा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेजेस में क्या क्या होता है, प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू विल बी लो. ये हो गया फर्स्ट स्टेज. आप इन जनरल खुद ही सोच के देखो कि क्या होगा, नया नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लाते हो तो यही चीज़ होगी ना. फिर सेकेंड स्टेज आता है ग्रोथ. अब मार्केट में प्रोडक्ट आ गया है, धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ी, फर्स्ट स्टेज में नहीं बढ़ी, बट धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होती हैं, रेवेन्यू भी हम लोगों का इंक्रीज होता है, स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट एंड द प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन. अब ब्रेक इवन इन सिंपल टर्म्स, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाया था, जिस पॉइंट पे आपके इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दे बिकम इक्वल, आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो गया. अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 10 लाख रुपए आपका लगा और अगर वो 10 लाख रुपए आपको मिल गए, तो दिस मीन्स यू आर ब्रेकिंग इवन, ब्रेक इवन, ठीक है. यहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हो, राइट. सो ये कौन से स्टेज में होता है, ये सेकेंड स्टेज या फिर ग्रोथ स्टेज में होता है. तो यहाँ पे प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है. कस्टमर्स दे बिकम अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट दैट हैज एंटर्ड द मार्केट, उसके बेनिफिट्स उनको पता चलते हैं, मार्केटिंग की जा रही है. देन वी हैव द थर्ड स्टेज विच इज द मेच्योरिटी स्टेज. यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ और सेल्स होती है. मेच्योरिटी, अब प्रोडक्ट क्या हो गया, मेच्योर हो गया, मतलब कि उसने एक पोजीशन बना ली है अपनी मार्केट में, उसने एक पोजीशन अपनी क्रिएट कर ली है मार्केट में, एक इमेज क्रिएट हो गई है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बढ़िया है, खूब सारा उसमें से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. सो दिस इज द थर्ड स्टेज. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड ग्रोथ, थर्ड मेच्योरिटी. देन फोर्थ स्टेज होता है स्टेलनेस और सैचुरेशन. अब क्या हुआ, जब वो छोटा वाला फोन आया, पहले किसी एक कंपनी ने स्टार्ट किया, उसने देखा कि चलो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर एंड्रॉयड फोन आ गए,
सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन जब आया उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज के एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। अब हर एक कंपनी टच स्क्रीन और सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो क्या हो गया, कंपटीशन क्रिएट हो गया, कंपटीशन। तो अब धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी या फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी, अब इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में वैसे ही दिखने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आप जाके मार्केट से एक फ़ोन लेकर आओ, तो आपके पास कंपेयर करने के ऑप्शंस रहते हैं, राइट? कंपेयर कर लोगे आप जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे, ऑल्सो एट चीपर रेट्स। अगर सेम टेक्नोलॉजी, इफ़ यू आर सीइंग फॉर द सेम टेक्नोलॉजी, बट आप देख रहे हो कि दो अलग अलग कंपनीज में, एक में कम प्राइस में मिल रहा है, एक में ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो आप कम प्राइस वाला ले लोगे, तो आप कंपेयर कर लोगे। सो कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फाइनली द डिक्लाइन स्टेज। The product becomes less attractive due to various reasons and results in drop in sales volume and profit. अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन सब, Recording in progress. आज ये काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ओके, अब अगर क्या होगा कि जो फर्म है या बैंक है, उसने नया प्रोडक्ट निकाला है और वो उसको मेच्योरिटी स्टेज में रखने की कोशिश करेगी मैक्सिमम टाइम के लिए, वो क्या करेगी कि वो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए, वरना डिक्लाइन स्टेज में तो क्या नेगेटिव प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो वो कोशिश करेगी कि मेच्योरिटी स्टेज में सबसे ज़्यादा रखो। उसके लिए वो क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट हो सकता है करे, या फिर एडिशनल कोई प्रोडक्ट या कोई ऑफर करे या डिस्काउंट्स दे, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसके लिए जो मार्केटिंग टीम होती है, जो भी मार्केटिंग टीम होगी, वो कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहेगी कॉन्टिन्यूसली कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कस्टमर की डिमांड्स कैसे चेंज हो रही हैं, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहेंगे, कुछ कुछ नया करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट डिक्लाइन या डेथ स्टेज में नहीं जाएगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे सेल्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो हमने दिखाया कि सबसे पहले, एक और अगर मैं यहाँ पे ग्राफ एक तरीके से ड्रॉ करूँ, ये ठीक है, तो ये हमको पता है ये 0 होता है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स ले लूँ, प्रॉफिट्स, तो हमने क्या बोला कि जब इंट्रोडक्शन होता है किसी प्रोडक्ट का, तो मैं अपना खुद का कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मशीनरी जो भी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में होगा, लेट्स से -10, एनी अमाउंट नेगेटिव में होगा। फिर जब ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, तब थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट होगा, और प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर डिक्लाइन करेगा, और डेथ के बाद फिर से नेगेटिव प्रॉफिट देने लगेगा। सो इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये है डिक्लाइन, यहाँ पे हो जाएगा डेथ, यहाँ पे मैच्योरिटी, यहाँ पे ग्रोथ, एंड दिस इज इंट्रोडक्शन। ये प्रॉफिट है। तो जब किसी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा देखो सेल्स नहीं है, ठीक है? जब सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट मेरे नेगेटिव में है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, फिर मैच्योरिटी होता है मैक्सिमम, सैचुरेशन, अब इससे ज़्यादा प्रॉफिट या सेल्स नहीं बढ़ सकता है, एंड देन फाइनली अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन या फिर डेथ स्टेज में वो प्रोडक्ट आ जाएगा। यही स्टेजेस होते हैं। बेसिकली वी टॉक अबाउट दीज 4 स्टेजेस। अनदर 5th स्टेज जो कई कई जगहों पे डिस्कस किया जाता है, दैट इज द डेथ। और मैम, एक्स साइकिल देयर इज लाइफ साइकिल, प्रॉफिट वर्सेस लाइफ साइकिल ना? आई एम सॉरी, ऑन व्हाट? ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इज लाइफ टाइम टाइम पीरियड। टाइम टाइम पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सेल्स का बताया गया है। ओके ओके। हाँ, तो ये वही बताया गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उस हिसाब से फिर
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सेल्स में हम लोग देखेंगे। क्लियर ये सारे स्टेजेस? और कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा जो एंटरप्रेन्योर है या बैंक है? मैच्योरिटी स्टेज में वो कोशिश करेगा कि डिक्लाइन स्टेज में ना जाए, उसके लिए वो अलग अलग ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा। सो ये हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द कोर प्रोडक्ट और द बेसिक प्रोडक्ट, एंड सेकेंड इज द ऑगमेंटेड और द एडिशनल प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं? विच डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन। जैसे कि अगर बैंक जो कोर प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है, वो बात कर रहा है लेट्स से सेविंग्स डिपॉजिट की, या फिर अगर वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में बात कर रहा है तो वो किसकी बात करेगा? वो और ज़्यादा Recording in progress. Ma'am, screen is not sharing. हाँ, आज कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। आज ऐसा करते हैं, जो मेन टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है, आज क्लास एंड कर देंगे थोड़ा सा डिस्कस करके, क्योंकि Sincere. काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। Okay, let's do one thing. I will end today's class because थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वॉइस भी ब्रेक हो रही है ना मेरी? मेरी वॉइस आ रही है? Recording in progress. ओके, लेट्स डू वन थिंग। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है यहाँ पे। आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, ma'am. क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो जा रहा है। एक और बार Yes, अच्छा, ma'am. एक चीज़ बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अगर फिर से ब्रेक होता है देन आई विल एंड द क्लास। बस एक बेसिक चीज़ और देख लेते हैं Okay, एंड ma'am. देन वी विल एंड द क्लास, ठीक है? हाँ, तो कोर प्रोडक्ट्स वो सारे होते हैं जो बेसिक प्रोडक्ट्स। अरे यार, Recording in progress. ओके, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। हम लोग कल डिस्कस करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग एक बार ये चीज़ कीजिएगा, डू वन थिंग, इसको जो बाकी सारे टॉपिक्स पढ़े एक बार रिवाइज करिएगा। मेनली कोर प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशंस और हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ के आइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अरे